Good morning. Good morning. Good morning, DXN. DXN, good morning. All over the globe, welcome to DXN family. Welcome to DXN RVC YouTube channel, YouTube live channel. We have today our guest speaker, extraordinary lady speaker, wonderful doctor by profession. She has contributed tremendously for the human health by her medical practice, later diversifying into prevention and nutrition and human wellness. Dr. Asma Munir, MBBS, MCPS, MCPS in FNM, ART, embryology from Australia, PGA from UK, MSc in assisted reproduction from UK. There are long list of her achievements, qualifications. She is a super specialist, if I say, in reproductive health. She has her extraordinary achievements, particularly in establishing IVF centers all over the world, IVF and pregnancy center in Pakistan as well as other countries like Dubai, Bahrain and many other countries. She has specialized in Australian concept of INF Medical Center, SurgMed IVF Center at Lahore, Janine Fertility and Genetic Center, Manama in Bahrain. He has helped as establishing as a consultant many hospitals. He has been practicing for the last 40 years, and that 26 years she has served her experience or knowledge in assisted reproductive health. Her mission mainly on prevention and nutrition, health awareness, publicity or propagation, and she has opened her mind. Here I insist that rarely the allopathy doctors open their mind on holistic medicine or alternative medicine. But today, as you know that world is not able to see the solution for many diseases. Either there are no drugs or no cure. Under these circumstances, all categories of doctors are opening their mind towards anything is there in research, either prevention or cure of disease even by any other sources. She is one of the pioneers in establishing more than 10 IVF centers in the world, including 3 in Pakistan. She got the Wonder Woman Award
in 2011, and she has been promoting DXN and supporting DXN for the last 12 years. She is an asset to DXN because such people are very rare who serve selflessly for the cause of health. Among such hundreds or thousands of doctors we have seen all over the globe, is one of them is Dr. Asma Munir. She represented Pakistan in more than 300 national and international conferences on reproductive health. Medical director of 6 IVF center, and in and out of Pakistan. First lady diamond of DXN from Pakistan, now double diamond. She has delivered more than 300 lectures in 19 countries on prevention and nutrition. Multiple research papers and articles she has published in her specialties for the past 40 years. And more than anything, I am very proud to introduce her as a part of my team. She is part of our team, DXN team. I am the applied up line ultimately. And whenever I go to Dubai, her love and affection, her humane approach, human problem is really touching our hearts. She is one of the very good, very humble, very simple, serving DXN soldier. I pray God to give her very long life to serve the humanity as a medical professional who diversified into human wellness. Welcome, Dr. Asma Munir from Dubai. Thank you very much. Assalamu alaikum, salam, namaste, sat sri akal, all the people and my DXN father. Welcome to the world of global health. And without father, children are nothing. You know that. So thank you very much for such kind words. I cannot open my eyes in front of you because you have said so much things that I don't know what to say. Just thank you very much. So kind of you. I will try to fulfill whatever expectations are. And thank you, Yogi, for connecting us all together. Welcome to the world of health, wealth, and happiness. And I take this liberty to thank Professor Vasupal, Professor Ratna Vasupal, and my dear Yoginder Vasupal, who has really helped me to meet you all today. And it was my dream to come back to my mother country and to at least you are most welcome, madam. Be there for virtually say, inshallah. So today is one mission which seems to be impossible, but it is no more impossible because you are under the umbrella of DXN. So I will start with the name of Allah the Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. Can I have the first slide, Yogi? After those initial 4 slides. Okay. Before I start, I will take the liberty to thank DXN globally. After Allah subhanahu wa ta'ala and my parents, and then Dr. Lim, DXN UAE, then my father, Professor Vasupal. I really thank you all to giving me this liberty to talk to you. Today, the topic is very, very time consuming, but I will try to
summarize it to make you understand. जो लोग हिंदी उर्दू समझते हैं उनके लिए 2 लाइनें कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह की, अपने माँ बाप की, उसके बाद मेरे गुरु और मेरे डिएक्शन के बाप यानी जो प्रोफेसर वसुपाल और रत्ना वसुपाल की और योगी की, जिन्होंने आज ये मौका दिया। और इस शुक्रिया के साथ कि आज का जो मौजू है वो वक्त का नाजुक तरीन मौजू है और इस वक्त हमें मिलजुल के फैसला करना है कि हमें इन तमाम चीज़ों से कैसे लड़ना है जो हमारे इर्द गिर्द है। तो आइए पहले तो थोड़ा सा बात करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबन। अल्लाह हमें ऐसा इल्म दे जो सबके फ़ायदे में हो और ऐसा अमल दे जो सबके काम आए, अल्लाह को कबूल हो, और ऐसा रिज़्क़ दे जो हलाल हो। इस दुआ के साथ हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड, कीप ऑन गोइंग, फिनिश दिस स्लाइड। हम बात करते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या है और हमारी जो ये खूबसूरत जिस्म अल्लाह ने हमें दिया है, एक मौजज़ाती जिस्म, इट्स अ मिरेकुलस बॉडी which Allah has given us. And when we started this life at the 8 weeks or 10 weeks of pregnancy, we had been given those cells to fight back. यानी जो रेजिस्टेंस, जो कुव्वत ऊपर वाले ने हमें दी, जो हमें दुनिया से बचा सकती थी, दुनिया की बुरी आफतों से बचा सकती थी, जरासीम से बचा सकती है, और जो हमें तमाम मोर्चों पे लड़ना सिखाती है, वो सबूत जो थे वो हमारी 8 महीने की जिंदगी से शुरू हो गए। ये 8 हफ्ते से 8 महीने और 9 महीने से 40 हफ्ते। यू स्टे देयर ऑन दिस स्लाइड, डोंट चेंज द स्लाइड नाउ। तो हम ये बात कर रहे हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमें कैसे मिलती है और हमारे जिस्म को अल्लाह ने बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी इजाफी मदद के कैसे बीमारियों से बचाया था और जिसको हमने बीमारियों के हवाले कर दिया। अब देखिए, हमारी स्किन से लेके और हमारे लिवर और हमारे स्प्लीन तक एक लंबी तादाद है उन तमाम चीज़ों की जिनके अंदर ये हिफाजती सेल या वो खलिए मौजूद हैं जो हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी देते हैं। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस of cells which are being secured by our systems, and these systems, they include our vascular system, they include our somatic system, and they include our lymphatic system, plus the bone marrow which is giving the premature WBC. इतनी खूबसूरत सेल लाइफ है। आप इसका अंदाज़ा ये लगाइए कि जैसे आप एक कमरे में बैठे और इस कमरे की दीवारें हैं, उसके अंदर लाइट है, उसके अंदर आपका एक दरवाज़ा है, उसके अंदर एक खिड़की है और उसके अंदर खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो आपकी हिफाजत करते हैं अगर वो खुद सेहतमंद हैं। अगर कोई सेल खुद सेहतमंद नहीं है तो वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, तो पड़ोसी की हिफाजत कैसे करेगा? यानी जो बराबर में सेल है और अगर वो बीमार हो जाता है तो उसकी हिफाजत कैसे करेगा? तो ये सिस्टम जो अल्लाह ने बनाया स्किन से लेके और आपके सिस्टम्स तक, वो आपकी हिफाजत उस वक्त करता है जब आप अपनी ग़िज़ा को, अपने लाइफस्टाइल को अपने लिए दुश्मन ना बनाएं। जब हम छोटे होते हैं तो माँ का दूध हमें 2.5 साल तक ये इम्यूनिटी देता है, अगर माँ का दूध अवेलेबल है। और आज की दुनिया में लोग मदर फीड पे जाते ही नहीं। यहीं से हमारी वो दिफाई कुव्वत कम होना शुरू हो गई। जब हमारी दिफाई कुव्वत पैदाइश से ही कम है तो फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और उन बीमारियों में कुछ तो फौरी बीमारियां हैं, एलर्जी है, माइल्ड इन्फेक्शंस हैं, और कुछ मुज़ी बीमारियां हैं जो हमारी जान ले लेती हैं। अब हम आजकल परेशान हैं कि एक छोटा सा वायरस है, उसने लाखों लोगों की ज़िंदगी ले ली, और ये वो वायरस है जो अपनी किसी और शक्ल में कुछ साल पहले जो यूएई में, गल्फ में और इससे पहले स्पेन में इसी से मिलती जुलती वबा क्रिएट कर चुका है। उसी कोविड-19 को जो SARS-2 की टाइप थी
अब उसने हमें कोविड-19 की शक्ल में हमला किया। उस पर हम बात करेंगे कि जब हम तमाम थोड़ी सी उन चीज़ों पे जायज़ा ले लें कि हमारे पास कौन से अज्जा ऐसे हैं कि जो इस वक्त हमारे काम आ सकते हैं। तो पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को महफूज कैसे किया जाए, और अगर हम महफूज करेंगे तो डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, और डेली बेसिस पे जब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे तो फिर हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दवाओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और हमें अगर बीमारी टकराती भी है तो हम उससे रिकवर जल्दी हो सके। अगर रिकवरी स्पीडी हो, रिपेयर स्पीडी हो, तो आप बैक टू नॉर्मल आ सकते हैं। जितना देर आपको रिकवर होने में लगता है उतना ही ज़्यादा आपको डैमेज होता है। तो बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर आ गई कि भाई क़ुव्वत मुदाफ़अत कैसे काम करती है, क्या होता है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक ऐसे निज़ाम को हिफाजत करने के लिए जो सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा साइंसदानों ने सिर्फ 30 to 40% ही जाना है, उसको ब्रेन से लेके स्किन तक, उसकी हिफाजत करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हमारी तालीम, हमारा अमल अगर चेंज नहीं कर सकी तो फिर हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कहाँ से शुरू होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सफाई की तरफ जाते हैं। ऊपर वाले की इबादत करने के लिए भी साफ होना पड़ेगा, तो पानी और साबुन, अगर ये दो चीजें जिससे आप अपनी सफाई कर रहे हैं वही साफ ना हो तो फिर सफाई का मतलब सफाई नहीं रह जाती, उल्टा आप उनसे जरासीम लेके अपने आप को उस लाइन में खड़ा कर देते हैं कि अब आप बीमार हो सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे नमूने भी होने चाहिए कि जो साबुन से सही इस्तेमाल उसका हो, सही साबुन हो, और उसके साथ हम अपनी एहतियात कर सकें। क़ुव्वत मुदाफ़अत, फिर दूसरा क़ुव्वत मुदाफ़अत में बैरियर पड़ता है हमारी ग़िज़ा से। हमारी ग़िज़ा अगर हमारे जरासीम को जगह देती है या अब हमें हेल्थ नहीं देती है तो फिर वो हमें बीमारी की तरफ ले जाती है। और जैसा कि हिपोक्रेट ने कहा कि लेट फूड बी योर मेडिसिन, वरना ये होगा कि मेडिसिन आपको दवा की तरह, ग़िज़ा की तरह खानी पड़ेगी। तो जब ये ही खाना हजम ना हो तो आंतें बीमार करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म बीमारी की तरफ चलता चला जाता है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए इस क़ुव्वत को मजबूत करने का तरीका हमें डॉक्टर लिम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई उन ग़िज़ाओं को एक जगह ग्रो करके हम तक उस साइंटिफिक डिटेल्स के साथ पहुंचाया कि जिससे हम अपनी इस इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी बाय टेकिंग द नेचुरल फूड, organic food, in which we should be thankful to Dr. Lim who has provided us these organic food supplements to improve the viability of the cells, to increase the resistance, to increase the repair, and also to have a long, healthy, graceful aging process. तो ये तमाम बातें जब सामने आती हैं तो सवाल पैदा होता है, भाई क्या ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर लिम ने आपको दी। तो डॉक्टर लिम ने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेड ऋषि मशरूम हम तक पहुंचाया। ये दुनिया का अजीम तरीन मशरूम, मिरेकलस हर्ब, जिसके अंदर मौजूदाती तौर पर कुदरती ऐसी असरात मौजूद थे जिसको आज साइंस की दुनिया इसको किंग ऑफ हर्ब्स कहती है। 3,500 से जायद मशरूम्स की मौजूदगी में एक किंग की दरियाफ्त बहुत आसान बात नहीं थी, और ये वो किंग था जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मशरूम्स का एक में बहुत बड़ा देवमालाई इसको दर्जा दिया गया। और उस ज़माने में 2,500, 3,000, कुछ कहते हैं 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले बादशाह लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि ये ऐसी जगह पे उगता था जहाँ आम आदमी अप्रोच नहीं कर सकता। और इसका काम ये था कि वो उन लोगों की न सिर्फ सेहत की ज़मानत दे बल्कि उनको एक लंबी उम्र बगैर बीमारी के दे, एंटी एजिंग। इस वजह से वो लोग इसको यूज़ करते थे। लेकिन हमारे पास जब ये मिला तो हमें उन तमाम साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ मिला, जिसमें तकरीबन 1,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिसका मैं अभी तस्करा भी करूँगी आपसे, कि जो लोगों ने स्टडी करने के बाद इसको ग़िज़ा का हिस्सा बना दिया। तो हम ये देखते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से
हमारे पास कम से कम 5-7 अज्जा ऐसे हैं जो आपको कुव्वत मुदाफ़त को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि कोरोना क्या चीज़ है उसके आगे हम कैंसर को भी पचा सकते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट गैनोडर्मा ल्यूसिडम, या आप जिसको ऋषि के नाम से जानते हैं, आरजीजीएल के नाम से जानते हैं, या आप उसे लिंगजी के नाम से जानते हैं, योंगजी के नाम से जानते हैं, और तकरीबन 23-24 इसके और भी नाम हैं। ये वो मशरूम था है जिसने अपने अंदर 412 ऐसे अज्जा लिए हैं कि जिसकी माइनर सी चेंजेस इनटू द सेल कैन चेंज द होल बॉडी इनटू अ डिफरेंट बॉडी। जो इसकी इफादियत रखने वाले 3 बड़े बड़े कैफियतें थी कि जो अज्जा थे जिन्होंने हमें इम्यून सिस्टम पे काम किया, उनमें पॉलीसेकेराइड्स, ट्राइटेपेनॉइड्स और गैनोडरिक एसिड्स, ये 3 बड़े अज्जा इसके अंदर ऐसे हैं कि जो हमें इम्यून सिस्टम की तरफ एक बेहतरी हमें नजर आती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर आप देखें तो इसको दुनिया तिब ने, यहाँ मैंने कुछ आर्टिकल्स आपको 2005-2006 के शुरू किए हैं जिन्होंने ये साबित किया कि किस तरह केमिकली ये गैनोडर्मा आपके सेल्स को बूस्ट करता है, इम्यूनाइज करता है और प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, चेंज दिस स्लाइड। या अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर इम्यूनोमॉड्यूलेटर का नाम यूज किया गया, मॉनिटरी ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर रिस्पॉन्स, एंड दिस स्टडी वाज डन इन 2006। पबमेड में ये अभी भी चल रही है ये स्टडी, और इसके अंदर हजारों पेशेंट्स का डेटा शामिल है। वो ये कहते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त को मॉडलाइज करती है, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम है उसको बढ़ाती है, और जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं उसको बैलेंस करती है, डिटॉक्स करती है। इसी तरह जो ख़राब सेल्स हैं उनका खात्मा करने में बॉडी की रेजिस्टेंस में हेल्प करती है, और जेनेटिकली उन तमाम एपिजेनेटिक कोड्स को डाइवर्ट कर सकती है जो एक बॉडी को बीमारी की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह इसने प्रोटीन इनिबिशन में और आपकी जीन थेरेपी के लिए, फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ, और अब हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो कोरोना को आपको मालूम है कि वो लंग्स के ऊपर जब अटैक करता है तो जिंदगी ले लेता है, और लंग्स एक ऐसी चीज है कि जो आपकी जिंदगी का सरमाया है, यानी जिंदगी लंग्स की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से आपको मिलती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई ही अगर ऑक्सीजन को ना पहुंच पाए, क्योंकि जो लंग्स का आखिरी हिस्सा है जिसको हम एल्वियोलस कहते हैं, वहां से ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर दाखिल होती है, ब्लड के अंदर दाखिल होती है, और वो ब्लड के अंदर दाखिला मुमकिन कम हो जाता है जब ये एल्वियोलाई इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना, या कोई भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, वो इसको वहां काम नहीं करने देता। तो यहाँ पर एक चैलेंज था रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो कि गैनोडर्मा बहुत अच्छी तरीके से फाइट बैक कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह नेचुरल एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी में एक और स्टडी आई, मेडलाइन ने ये बताया कि जो गैनोडर्मा का जो ट्राइटेपेनॉइड कंस्टिट्यूएंट है वो खुद एंटीवायरल है, यानी एक तरफ तो आप सेल्स की सूजन को खत्म कर रहे हैं ताकि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई मिले, दूसरी तरफ आप खुद उस वायरस को खत्म कर सकते हैं थ्रू गैनोडर्मा जो आपको अटैक कर रहा है। तो ये समझिए कि एक डबल बैरल गन है कि जो आपको कुव्वत भी दे रही है और कुव्वत मुदाफ़त भी दे रही है, ग़िज़ा भी दे रही है, वाइटैलिटी भी दे रही है और रिपेयर भी कर रही है। ये तमाम चीज़ें किसी एक ग़िज़ा में जब हो तो उसको हम मुकम्मल ग़िज़ा कहते हैं। और ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन 2000 से लेके और 2020 तक ये आर्टिकल्स आते चले गए और अपनी प्रूफ देते चले गए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए कि मैंने एक रेफरेंस को लेकर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये रेफरेंस नवंबर 7, 2019 लेटेस्ट आर्टिकल है ये, जिसने ये कहा कि जो मुताबिकत रखने वाली, इम्यून सिस्टम को सही रखने वाले सेल्स हमारे जिस्म के अंदर सफेद खलिए, मैक्रोफेजेस, उनको हेल्प करता है ऋषि, शिटाकी और मियाटेकी मशरूम। ये वही एक ही फैमिली के ये मशरूम्स हैं। और दिस स्टडी वाज
published in 2019. ये पहली स्टडी है इसने ये बताया कि एक डिफाइंड मशरूम जो है वो मिला जुला काम कर सकता है अपनी बॉडी के सेल्स के साथ, अलावा उसके जो अपनी उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। और इसने एक और बात भी बताई, देखिए हमारी बॉडी में जो केमिकल्स हैं ना जो हमें डिफेंड कर रहे हैं उनमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, उसमें मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगी उसको साइंटिफिक बनाने के लिए, लेकिन इंटरल्यूकिन का नाम आपने सुना होगा, उसकी वैरायटी है इंटरल्यूकिन 1 से लेकर और 10 तक। लेकिन इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 और TNF, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये वो केमिकल्स हैं जो कि इस मशरूम में भी शामिल है। और चूंकि वो इस मशरूम में शामिल हैं इसलिए वो फाइट बैक करने में आपकी मदद करते हैं। ये इतना बड़ा सबूत है कि ये तमाम डॉक्टर्स के लिए, तमाम दुनिया साइंस के लिए एक सबूत है कि आइए और गैनोडर्मा को आपकी बॉडी की मदद करने दीजिए। एक्सटेंट यहाँ तक कि ये है कि स्ट्रक्चर से लेके और पैथोजन की ऑर्गेनाइजेशन तक, यानी गैनोडर्मा पहले तो उस एलियन को आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोज करता है कि कौन सा सेल बॉडी के खिलाफ काम कर रहा है और कौन सा सेल बॉडी का होते हुए भी अपने खिलाफ काम कर रहा है। यानी बाज़ औक़ात तक, जैसे मैं मिसाल इसकी अक्सर अपने लोगों को देती हूँ कि आप अगर कोई मेड रखते हैं और वो मेड ही घर में चोरी करने लग जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं चलता कि वो 5 रुपए 10 रुपए रोजाना चुरा रही है, आप कहते हो हमने खो दिया। बिल्कुल इसी तरह आपके बॉडी के सेल्स आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और इसको हम ऑटो एंटीबॉडी कहते हैं। और गैनोडर्मा ऑटो एंटीबॉडीज को भी रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज अ ह्यूज मिरेकल कि एक ग़िज़ा का एक सेल अपने एलियन, अपनी बॉडी के एलियन को रिकॉग्नाइज करे, उसको सरेंडर करे और सरेंडर करने के बाद उसको आप ही की बॉडी के जरिए खत्म करवा दे। यानी ये ऑर्गेनाइज करता है। मैं इसको कहानी के तौर पर लोगों को बताती हूँ कि जैसे आपके घर में कोई चोर दाखिल हो जाए और वो चोर जो है अब चोरी करने से पहले मुसल्ला है और आपके पास आपका गार्ड जो है उसके हाथ में जो गन है उसका नाम है गैनोडर्मा। गार्ड जो है आपके घर वालों को उठाएगा, वो आपके WBCs हैं और ये WBCs जो हैं ये जो जब उसको सरेंडर करेंगे तो फिर वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे कि वो उस चोर को या तो गिरफ्तार करें या मार डालें। ये इस तरह से गैनोडर्मा आपकी बॉडी के सेल्स में काम करता है और ये पैटर्न जो है ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कहलाता है, जिसको हम PAMPS कहते हैं। और इसकी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन भी दुनिया ने ये आज दे दी हमें कि जो हमारे ये मैक्रोफेजेस हैं ये किस तरह जाके हमारे वायरसेस को, हमारे बैक्टीरिया को और हमारे केमिकल पॉइजन्स को हमारी बॉडी से साफ करते हैं। अब गैनोडर्मा का जो एक और खूबसूरत काम, पेन किलिंग इफेक्ट। आपको मालूम है कि जितने भी वायरसेस जब ब्लड में अटैक करते हैं तो बॉडी में सीवियर पेन होता है, पूरी बॉडी फटीग हो जाती, थक जाती। और गैनोडर्मा के अंदर पेन किलिंग इफेक्ट, एंटी वायरल इफेक्ट के साथ साथ मौजूद है। तो अगर खुदा न खास्ता ये वायरस आपके टकराता भी है तो और गैनोडर्मा की मिकदार इतनी बढ़ा दी जाती है, जैसे कि डॉक्टर लिम ने कहा कि कम अज़ कम उसको मेगा थेरेपी तक आप लेके जाइए तो आप उसको जरासीम को होते हुए भी आप उसे फाइट बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये वो रेफरेंसेस थे जिन्होंने हमें ये बताया कि गैनोडर्मा के अंदर फंगस को मारने की प्रॉपर्टीज भी हैं, गैनोडर्मा के अंदर सूजन खत्म करने की प्रॉपर्टीज हैं और इसके साथ साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसने केमिस्ट्री में और जिसमें केमिकल पैथोजेनेसिस में इतना बड़ा रोल हमें दिखा दिया कि कोई भी जरासीम हो, एलर्जी हो, एक्जिमा हो, ट्यूमर हो, सोजिश हो, आर्थराइटिस हो, कार्डियक इशू हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, हमारी बॉडी इन तमाम सबूतों के साथ फाइट बैक कर सकती है अगर उसके खून में गैनोडर्मा लुसिडम शामिल है। अब हम कैसे इसको इस्तेमाल करें, ये तो नेक्स्ट स्लाइड, आई कैन जस्ट फिनिश दिस स्लाइड एंड देन आई विल कम बैक टू यू क्विकली। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी देखिए इन्होंने डाइटरी फाइबर्स को इम्यून रेगुलेशन का एक हिस्सा बताया जो कि गैनोडर्मा का एक एमिनेंट हिस्सा है। इसके अंदर बीटा ग्लूकैन है और बीटा ग्लूकैन जो है वो मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है।
और बीटा ग्लूकैन ये वो केमिकल था जो हमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ट्राइटर्पीन्स के साथ साथ बीटा ग्लूकैन एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट था जो गैनोडर्मा में मौजूद है और कैंसर सेल्स के खिलाफ भी काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। इवन एलर्जिक राइनाइटिस जो कि हमें जुकाम की शक्ल में हमारे सामने आता है, अब चाहे वो कोविड-19 का जुकाम हो या वो नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, गैनोडर्मा दोनों में बीटा ग्लूकैन की वजह से हमें हेल्प करता है। फिर अगर हम बीटा ग्लूकैन की नेचुरल सोर्स की इनकी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को देखें तो कोई भी चीज जिस्म में जब दाखिल होती है तो वो सोजिश करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, और जब इन्फ्लेमेशन करती है तो हम कितनी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खाएंगे। याद रहे कि एज ए डॉक्टर आप और हम जानते हैं कि जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो सब मैदे के ऊपर कभी ना कभी असरअंदाज होती हैं, मैदे को कभी ना कभी तंग करती हैं, लेकिन ये वाहिद एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है जो कि मैदे को सपोर्ट करती है, मैदे की इवन मैदे की सूजन वरम को खत्म करती है, इल्ला ये कि वो उसको तकलीफ क्या दे। For the people who don't understand Hindi, this was just a brief introduction of Ganoderma as an anti-inflammatory agent, as an anti-allergic agent, and as a painkiller, and as a complete food supplement which can give you energy, immunity, synchronized effect, synergistic effect with all the other medications, and without any side effects on stomach or any other part of the body. Sometimes you have some reflections which are momentary and they can be relieved in a few weeks of low dosage. तो ये तमाम वो आइसोलेटेड स्टडीज हजारों में से चंद मैंने चुनी आपको बताने के लिए। और इसी तरह जब हम कैंसर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कैंसर के खिलाफ भी इसके अंदर बहुत सारा मवाद मौजूद था, जो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ मौजूद हैं जिन्होंने इसको कैंसर के से रिलीफ करने का जरिया बताया और कैंसर के खिलाफ जो मेडिकेशंस यूज होती हैं उनके साइड इफेक्ट से लड़ने का तरीका भी बताया। तो नेक्स्ट स्लाइड या now this slide again it is giving us abundant proof के जो फंक्शंस इसके इंटरल्यूकिन अल्फा और बीटा के ट्यूमर सेल्स के ऊपर हैं वो किस तरह कैरेक्टरिस्टिकली इम्यूनाइजेशन हमें देते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं, या जो पॉलीसैकेराइड्स इनके स्पोर्स में मौजूद है गैनोडर्मा में वो किस तरह से आरजीजी और जीएल शक्ल में हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाता है। साथ साथ पॉलीसैकेराइड के अंदर ब्लड कैंसर से के जीन एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम करता है और साथ में तमाम वो इम्यून एनहांसिंग कैविटीज या जो प्रॉपर्टीज हमारे सेल्स की हैं उनको थेरेपेटिक लेवल तक लेके चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड या तो यानी एक तो ये कि जरासीम को आइडेंटिफाई करना, उसके खिलाफ काम करना, फिर बॉडी को उसके खिलाफ तैयार करना और फिर उस सेल्स को इम्प्रूव करते हुए रिपेयर कर देना, ये है गैनोडर्मा का काम। अब आप कैसे फायदा उठाएंगे? साबुन ले लें गैनोडर्मा का, 20 सेकंड तक उसे वॉश करें और वॉश करने का तरीका भी आपको पता है कि इसको किस तरीके से एक एक हिस्सा आपका हाथ का साफ होना चाहिए। और अच्छा ये तो सोप, क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस जो है वो सोप से ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उस सोप के अंदर कोरोना के मारने की तदबीर भी हो तो बाय वन गेट वन फ्री, यानी आपने हाथ को भी साफ कर लिया और वायरस को भी उससे मार दिया विद द प्रेजेंस ऑफ गैनोडर्मा। अब आइए टूथपेस्ट की तरफ। टूथपेस्ट में जो गैनोडर्मा है वो आपके गम्स की सेटिस्फेक्शन के लिए है और उसके साथ साथ आपकी गम्स की हार्मनी के लिए है। आपके जो बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं उसको साफ करेगा। अगर यहाँ सोजिश और दुखन है उससे गॉगल्स कर लीजिए। अगर नाक में थोड़ी सी इचिंग या बेचैनी है तो स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए और रेगुलरली आजकल तो मैं कहूँगी रात को सोते वक्त स्टीम लेके सोएं ताकि आप जब सुबह उठें तो आपके बॉडी की रेजिस्टेंस बेहतर हो। उस सोते में जो आपने जो जरासीम या अगर वायरस आपके अंदर गया तो उससे आप फाइट बैक सोते में भी कर सकें। शैम्पू से लेके और उसके साथ बॉडी फोम तक इसके अंदर गैनोडर्मा का आप फायदा उठा सकते हैं। ऑयल, जहाँ जहाँ ड्राई स्किन है आप ऑयल अप्लाई करें तो आपने उस, चूंकि वो भी खुद एंटीवायरल है, बाहर निकलते हुए आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं।
आप जो स्किन आपकी एक्सपोर्ड है उसके ऊपर आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपका सिक्योरिटी सिस्टम वायरस के खिलाफ हो जाएगा। अब आइए आप खाने की तरफ। आपकी इब्तिदा सुबह की कॉफी से, चाय से होती है। अगर उस चाय में वो तमाम प्रॉपर्टीज हों जो आपको ग़िज़ाइयत भी दे और आपको तवानाई भी दें और आपको वायरस के खिलाफ लड़ने का हौसला भी दें और उन सेल्स को बॉडी से भी साफ करें जो आपको वायरस की तरफ सेंसिटिव है, तो ये एक रेजिस्टेंस यहीं से शुरू हो गई। जब वो मैदे में पहुंचा तो मैदे के अंदर उसने अपनी सेहत को मैदे के सेल्स को सेहत दी। इसी तरह जब वो खून में गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, यानी वो ऑक्सीजन जो सेल्स के अंदर जाती है, फर्ज करें 1 ग्राम जा रही है, तो गैनोडर्मा उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की कैफियत दे सकता है उन रेड सेल्स को। और वो WBCs जो फाइट बैक कर रहे थे आम हालात में, गैनोडर्मा की वजह से और तवाना हो जाते हैं और मुसल्ला हो जाते हैं, और अब वो रिपेयर भी कर सकते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में भी काम कर सकते हैं, और आपने अपने सेल्स के मेटाबोलाइट जो अंदर से जो केमिकल पॉइजन आ रहे हैं और जो बाहर से पॉइजन आ रहे हैं, उन दोनों से आपको बचा सकते हैं। और ये आपको पता भी नहीं लगेगा क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर इसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आपको ये बताए कि आप अब क्या काम कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक ही तरह पता लगेगा जब आपके माहौल में लोग बीमार हो रहे हैं और आप बीमार नहीं हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ गैनोडर्मा ऑन योर बॉडी। अब इसको कितना इस्तेमाल करें? डॉक्टर लिम की हिदायत के मुताबिक 15 ग्राम ऑफ गैनोडर्मा इज नीडेड विद एवरी डे, इट्स डेली रिक्वायरमेंट है। अब चाहें आप उसको ग़िज़ा में पकाते वक्त डाल दीजिए, या आप उसे चाय के कॉफ़ी के तौर पे ले लीजिए, या आप उसको सैलेड में डाल के दे दीजिए, या आपकी अपनी सहूलत है। एक और चीज़, मालूम नहीं आपके पास लेमोजी अवेलेबल है या नहीं, लेकिन अगर आपके पास चाय है, लिंगजी चाय मौजूद है, तो उसमें अगर आपने नींबू डाल लिया तो विटामिन सी एक और इम्यून एजेंट है हमारा जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो वो आपको इम्यूनिटी डबल हो गई। यानी विटामिन सी, टी एंड गैनोडर्मा, दैट इज इक्वल टू लेमोजी ऑफ DXN विच यू कैन मेक एट होम ऑल्सो। तो ये आप डेली में गर्म पानी में डाल के और इसको आप बना के रख लें हमारी तरह। मैं तो इसको बना के रखती हूँ ताकि मैं हर वक्त वही गर्म पानी पीते रहूँ। तो ये आपका परसिस्टेंट इम्यूनाइजेशन है जो आपको गैनोडर्मा से मिल सकता है। अच्छा, अब आइए कि बच्चों को कैसे दिया जाए गैनोडर्मा, या उन खवातीन को कैसे दिया जाए जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीती हैं। आप उन्हें कोकोजी या चॉकलेट मिल्क में दे सकते हैं। गर्म दूध में थोड़ा सा कोकोजी मिलाइए और सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा 4 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। इससे थोड़ा सा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जिस्म जो है वो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी एक्वायर कर लेगा। डेली बेसिस पे हर 2-2 घंटे से हाथ धोना, गर्म पानी को पीना और अपने आप को आइसोलेट करना, अपने आप को कैरियर ना बनने देना। देखिए, अगर मुझे जरासीम है मेरे अंदर और मैं मजबूत हूँ, लेकिन मेरे अंदर जरासीम मौजूद हैं, मैं दूसरे को ज़रूर कैरी कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ हमारी आइसोलेशन काम आती है। और इसी तरह जब तक मैं अपने अंदरूनी जरासीम को ना मार लूँ, जो कि हमें कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग सकते हैं, उस वक्त तक मुझे अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए अगर मेरे इलाके में कोविड-19 मौजूद है। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, आप अपने इलाकों के हिसाब से, अपने ग़िज़ा के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से और अपने हालात के हिसाब से इस तमाम जो डोजेस को मोबिलाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। आइए फिर हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों को आपने गैनोडर्मा कैसे देना है और किस उम्र में देना चाहिए। गैनोडर्मा शुरू के 3 महीने के बाद आप आराम से चॉकलेट मिल्क के साथ पानी में मिला के, दूध में मिला के, उनके वज़न के हिसाब से उनको दिया जा सकता है, जो उन्हें इम्यूनिटी देता है। माँ का दूध पर है जो बच्चा है वो तो इम्यूनाइज हो ही रहा है, और अब जब हम बात करेंगे स्पाइरुलिना की तो हम बताएंगे कि माँ के दूध की तरह हमारे पास भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी प्रोवाइडर है। तो किस्सा यहाँ पर गैनोडर्मा का ख़त्म नहीं होता।
किस्सा यहाँ पर गैनोडर्मा के बारे में शुरू होता है कि ये तो सिर्फ इम्यूनिटी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, मूड स्विंग्स। आप घरों में बैठे हुए हैं, आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का शिकार हैं, तो आपको अब साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी चाहिए। अब आपको सोशल इम्यूनिटी भी चाहिए थी, तो अब आपको साइकोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन भी चाहिए। यानी अब आपको डिप्रेशन से बचना है, अपने आप को पॉजिटिव लेके चलना है और इस क्वारंटीन को या इस आइसोलेशन को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, अपने आप को सही रखना है। मैं जैसे बार बार बात करती हूँ कि हम लोग 3 हलकों में बटे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। वो लोग हैं जो सिर्फ डर के मारे बैठे हुए हैं कि अब पता नहीं अब हमें कोरोना हो गया है या होने वाला है, तो बस अब हमारी जिंदगी खत्म है, क्या होगा, और स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बढ़ता जा रहा है। दूसरा ग्रुप वो है जो कि है तो खौफजदा लेकिन थोड़े से बोल्ड हैं, अभी बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूरी तौर पर नॉर्मल नहीं कर पाए और अपने आप को इफेक्टिव नहीं कर पाए। तीसरा वो छोटा ग्रुप है जो 10 to 15% है, जिनमें आप और हम शामिल हैं, कि हम वो लड़ाई, हम वो जिहाद में निकले हुए हैं कि हम अपने उस वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करें उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो एंजाइटी का शिकार ना हो पाए, उनको सही तजवीज दें, अपने आप को लर्निंग कर्व में लेके आएं, समझें, पढ़ें, पढ़ाएं, अपनी वो कमियों को दूर करें जो हमने अपने काम के सिलसिले से अपने खानदान को दे दी, अपने ताल्लुकात को इस्तवार करें, अपनी दोस्तियां मजबूत करें और एक दूसरे के काम आए। ये वो वक्त है जिसमें आप इसको चौमुखी चारों कॉर्नर से ये जंग आप जीत सकते हैं कि अगर आपने अपना स्टेमिना इंप्रूव किया, आपने अपना रेजिस्टेंस इंप्रूव किया, पर्सनालिटी को ग्रूम किया और स्ट्रेस बस्टर बन गए, तो आप अपने लिए भी और अपने माशरे के लिए भी एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं। और जाहिर है एक बहुत बड़ा फरीजा भी है और नेक काम। तो गैनोडर्मा के हवाले से तो स्ट्रेस बस्टर आप जानते हैं कि एंजाइटी को भी ख़त्म करता है, वो केमिकल्स को रिलीज करता है एंड इट मेक्स यू हैप्पी। और हैप्पी मोड में जाने के बाद बॉडी भी इम्यून होती है। एक और हिदायत आप लोगों के लिए कि नींद बहुत ज़रूरी है और सही वक्त पर नींद, यानी दिन में ना सोएं, रात की नींद जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। पानी की कसीर मिकदार, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे ग़िज़ा और एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ें, और धूप, ये 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के बेस्ट डॉक्टर को काम करने का मौका देती हैं। तो आपकी बॉडी इज़ द बेस्ट डॉक्टर, यूज इट एंड स्ट्रेंथन इट विद गैनोडर्मा। तो ये बात तो हो गई आपकी गैनोडर्मा की। आइए चले थोड़ा सा अगले प्रोडक्ट के बारे में जब जानते हैं, और उसका नाम है स्पिरुलिना। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट, कीप गोइंग। या स्पिरुलिना, एज द वर्ड सजेस्ट, स्पाइरल शेप, एक ऐसा माइक्रो एल्गी जिसको दुनिया ने बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड माना। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी बहुत सुन चुके हैं हम सब लोगों से, और ऑलरेडी पबमेड में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मौजूद हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इसके जो ये सोर्सेज हैं, spirulinasource.com, फैमिली हेल्थ न्यूज़ और बहुत सारे ये वेबसाइट्स हैं जो स्पाइरुलिना पे तमाम सवालात का आपको जवाब दे सकती हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह मियां ने कूजे में दरिया बंद किया है। ये एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिसके साथ एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ पानी और ये ग़िज़ा लेके महीनों स्पेस में जिंदा रहते हैं, और जब नासा के साइंटिस्ट इसको अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए बेहतर समझते हैं, तो दुनिया में एक आम आदमी के लिए कितनी सिक्योरिटी इसके अंदर होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैटी एसिड्स, गामा ल्यूनिक एसिड, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसरस, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी आर्थरेटिक और एंटी यानी हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट के तौर पर ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस में, इन तमाम चीज़ों में स्पाइरुलिना का रोल देखा गया। तो जब आप घर पे बैठे हुए हैं, अब आपके पास आपकी मर्जी का खाना भी नहीं, तो आप अपने आप को कुव्वत दे सकते हैं। स्पाइरुलिना की 10 से 20 गोलियां, डॉक्टर साहब तो कहते हैं 60 टैबलेट्स आप डेली यूज करें तो आपको कोरोना वायरस नहीं टच कर सकता, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। देखिए स्पाइरुलिना प्रोटीन है,
और प्रोटीन, आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन है। आपको जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, तवानाई के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए और जिंदगी के लिए प्रोटीन चाहिए। जब तक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में नहीं है उस वक्त तक आप ज्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह सकते। तो स्पाइरुलिना के अमाइनो एसिड्स हों या एसेंशियल फैटी एसिड्स हों, वो सेल्स की दीवार से लेके सेल्स की तमाम मशीनरी, वो मशीनरी जो न्यूक्लियस के अंदर है, आरएनए, डीएनए, वो मशीनरी जो बाहर पैकेजिंग कर रही है, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वो मशीनरी जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स लेके बैठी हुई है, और वो दीवारें जो सेल को एक शक्ल दे रही हैं, सब के सब प्रोटीन से बने हैं। और अगर आपके पास गुड क्वालिटी प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल इसी तरह कि इमारत बनाने के लिए अगर क्वालिटी की मिट्टी और सीमेंट नहीं है तो इमारत बहुत ज्यादा देर पा नहीं होती। तो योर बॉडी हैज टू बी मेड बाय स्ट्रॉन्ग प्रोटीन सो दैट इट कैन सस्टेन द एक्सटर्नल इंसल्ट्स ऑन द बॉडी। यानी बैरूनी खतरे जो हवा, पानी, दवा, वायरस, बैक्टीरिया, आदतें और ग़िज़ा, ये तमाम चीजें जब आपके सेल्स के ऊपर हमला करती हैं और आपके सेल्स की दीवारें कमजोर होंगी तो आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो स्पाइरुलिना आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है बाय इंप्रूविंग दीज सेल्स। टू टाइप ऑफ सेल्स, वन विच आर मेकिंग द न्यू सेल्स। कौन से सेल्स? आपके वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये वो सेल्स हैं जो बोन से आते हैं, थाइमस से आते हैं, लिम्फ नोड से आते हैं और आपकी वो पुलिस फोर्स बनाते हैं जो बीमारी से लड़ सकती है। तो जब स्ट्रक्चर ही आपका कमजोर होगा तो बनावट भी कमजोर होगी। आपकी पुलिस फोर्स भी अगर कमजोर है, बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं आपके घर में गार्ड खड़ा कर दूं और वो खुद बेचारा बीमार हो, हिल रहा हो, गन पकड़ते हुए उसके हाथ कब कपा रहे हो, वो आपकी क्या हिफाजत करेगा? बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी के सेल्स अगर मजबूत हैं तो वो आपकी हिफाजत कर सकते हैं। तो स्पाइरुलिना जाके इन बॉडी के सेल्स को अच्छी ताकत देता है, अच्छी बनावट देता है, वो रिसेप्टर्स स्ट्रॉन्ग करता है जो कि फाइट बैक कर सकते हैं, जो कि आपको ग्रो कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बड़ा होना उसकी मुकद्दर है, अगर वो उसको सही ग़िज़ा प्रोटीन नहीं मिला तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन की तरफ गया, वो ज्यादा बीमार होगा। वो माएँ जो प्रोटीन कम इस्तेमाल करती हैं वो ज्यादा बीमार होंगी। वो बुजुर्ग जिनका खाना कम है वो ज्यादा बीमार होंगे। तो कौन कौन कैंडिडेट बन गया स्पाइरुलिना का? वो माँ जिसने अभी पैदा नहीं किया उसको भी स्पाइरुलिना चाहिए, और वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ उसको भी स्पाइरुलिना चाहिए, और वो माँ जो अब माँ बन चुकी है उसको भी स्पाइरुलिना चाहिए, वो माँ जो दूध पिला रही है उसको भी स्पाइरुलिना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गामा लिनोलिक एसिड है जो कि दुनिया का किसी फूड में मौजूद नहीं। इसमें B1, B6, B12 की इतनी खातिर में मौजूद है, इतना अमाउंट में, कि आपको इसको लेने के बाद कोई विटामिन लेने की जरूरत नहीं। इसके अंदर वो विटामिन ए है जो आपको नाइट ब्लाइंडनेस से बचा सकता है। इसके अंदर वो विटामिन हैं जो आपकी स्किन की इंटेग्रिटी को बेहतर कर सकते हैं। प्रोटीन्स की जब बात होती है तो आपको हार्मोन्स की याद आती है, आपको एंजाइम्स की याद आती है। सेल्स के साथ साथ सेल्स को बनाने, उनको ऊपर मेहनत करने के लिए जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन्स आपको स्पाइरुलिना बगैर इस मेहनत के कि अगर आपको खा के खून में जाएगी, ये मुंह से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको ब्रेक डाउन की भी जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है मुंह से। तो बच्चों को अगर देना है तो पानी में मिला के दे सकते हैं, सीरियल दे सकते हैं, दही में दे सकते हैं, सलाद में दे सकते हैं, और तो और मैंने लोगों को इसको बेसन में मिला के इसके पकोड़े बनाते भी देखा। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जो लोग सेंसिटिव हैं अपने सेहत के बारे में, जो लोग सेंसिटिव हैं अपनी सिक्योरिटी के बारे में, वो स्पाइरुलिना सारी उम्र इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेट रिडक्शन के लिए, वेट इम्प्रूवमेंट के लिए, मेंटेनेंस ऑफ गुड एज के लिए, मेंटेनेंस ऑफ मेंटल इंटेग्रिटी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ नर्व्स के लिए, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वेसल्स के लिए। यानी अगर मैं स्पाइरुलिना पे बोलना चाहूँ तो आज जो मुझे मेरा ख्याल है कि मैं रात भर बैठ सकती हूँ यहाँ, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्पाइरुलिना पे मौजूद। और प्रोफेसर रत्ना मुझसे एग्री करेंगी
कि ये एक वो चीज थी जिसने हमारे उन बच्चों को एक्सक्यूज मी, उन बच्चों को तवानाई दी जो आए नहीं अभी दुनिया में, और उन बच्चियों का खून बढ़ाया जो आने वाले दिनों में सिर्फ 1 सेकंड के अंदर एक औरत के मरने का सबब खून की कमी होती है। यानी जैसे एक प्रोफेसर का कहना है कि अगर मैं एक दफा ब्लिंक करूं तो पूरी दुनिया में एक औरत मर जाती है खून की कमी से। तो खून की कमी के लिए ग्रीन ब्लड का नाम दे दिया गया स्पायरुलिना का, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मिकदार मौजूद है, इसके अंदर प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना, और हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा आपको सपोर्ट मिल जाती है स्पायरुलिना से। तो जो लोग हीमोग्लोबिन इंप्रूव रखेंगे उनका रेजिस्टेंस इंप्रूव रहता है, और जिनकी हीमोग्लोबिन अच्छी होती है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बेहतर होती है। जब ऑक्सीजन बेहतर होगी तो पीएच बेहतर होगा, जब पीएच बेहतर होगा, एल्कलाइन होगा, तो आप कैंसर तक से लड़ जाएंगे। तो मैंने इन तमाम चीजों को एक मुख्तसर तौर पर आप तक पेश किया ताकि आप इसको समझ सकें कि स्पायरुलिना की हमें किस हद तक जरूरत है। तो डेली अगर आप 10 से 12 स्पायरुलिना लें तो कोविड-19 से लड़ सकते हैं। कोविड-19 से हर बच्चा लड़ सकता है, हर बूढ़ा लड़ सकता है, वो जो खाना खाता हो या नहीं खाता हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबको तौफीक दे स्पायरुलिना खाने की। लेट मी मूव ऑन टू अनदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज योगी, नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, next slide, next. Now how does this affect the immune system? No, go back. तो स्पायरुलिना को खत्म करते हुए सिर्फ इस बात को याद दहानी कराऊंगी कि स्पायरुलिना कुव्वत मुदाफियत को तो इम्प्रूव करता है WBC के बनाने के लिए, लेकिन रेट ऑफ RBC, रेट ऑफ रेड सेल की जो डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ाता है, इसीलिए ये एनीमिया से लड़ता है। अंदरूनी कुव्वत मुदाफियत और स्पेसिफिक इम्यूनिटी फॉर डिजीजेस को एनहांस करता है। नेचुरल किलर सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर है उनको बनाता है। मैक्रोफेजेस जो बड़े WBCs हैं उनमें हेल्प करता है। एंटीबॉडीज बनाता है और आपके टी सेल्स को इंप्रूव करता है। दिस इज हाउ इट गिव्स यू इम्यूनिटी ऑन इट्स इंटरनल रोल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास तीसरा सिपाही जो डिएक्सन के पास तीसरा कर्नल और जनरल जो मौजूद है वो है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। कॉर्डिसेप्स दुनिया का बहुत ही पुराना मेडिसिनल फंगस जिसको हिमालयाज में से उठाया गया और दुनिया ने इसको बेस्ट स्टेमिना प्रोड्यूसिंग कैटरपिलर मशरूम का नाम दिया। और अब लोग ये कहते हैं कि ये वो वाहिद मशरूम है जो ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी के ऊपर काम करता है। और जब ब्लड वेसल साउंड हो तो क्या ऑक्सीजन और क्या आपकी इम्यूनिटी, क्या आपके गुर्दे, क्या आपका जिगर, सारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, इन सब के अंदर अगर कोई काम सही रख सकता है या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करता है वो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस है। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड, उन्होंने, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, उनको एंशिएंट चाइनीज हर्बल मेडिसिन ने साइंटिफिकली प्रूव किया और उन्होंने ये कहा कि इसकी यूटिलाइजेशन से न सिर्फ आप बच्चे से लेके बड़े तक स्टेमिना देते हैं बल्कि माइक्रो सर्कुलेशन के इम्प्रूवमेंट से हार्ट को भी सेव करते हैं, लंग्स को भी सेव करते हैं, किडनी को भी सेव करते हैं और ब्रेन को भी सेव करते हैं। तो इससे बेहतर ग़िज़ा हमारी क्या होगी कि जो हमें बारीक सी नालियों से लेके और मेजर ऑर्गन्स तक हमें सपोर्ट देती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च ने ये एक मोनोग्राफ जारी किया जिसने ये कहा कि कॉर्डिसेप्स बिल्कुल सेफ है और जो डोजेज हमने आप जो बताते हैं 4 से 6 टैबलेट्स या 10 टैबलेट्स डेली, ये बिल्कुल सेफेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है और एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशरूम है जिसको लोग 4000 साल से इस्तेमाल करते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर तो हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी के साथ साथ सिक्योरिटी भी हो तो फिर
ये तीसरा जर्नल भी हमारे साथ काम करता है। कॉर्डिसेप्स की एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि लंग्स के जो बारीक शरियाने जहाँ से खून ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लेता है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन की फराहमी और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट और उन सब की सूजन वरम को भी कम करता है, बना रहा है, वहां पे सेफ है। यानी किडनी फेलियर में आप कॉर्डिसेप्स बेफिक्र होकर दे सकते हैं ताकि आप किडनी को महफूज कर सकें। ब्रेन में भी सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट को इंटेग्रिटी देता है, तो आपकी मेमोरी बेहतर होती है, रिकग्निशन में बेहतर होती है, और ब्रेन से ही हमारा पूरी बॉडी का फंक्शन चलता है। तो ब्रेन के फंक्शन अगर बेहतर हैं तो फिर हमारा बॉडी का फंक्शन भी बेहतर है। और तो और चूंकि मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बंदा हूँ, तो मैं अपने उन मरीजों को जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं उनको ये हिदायत करना चाहूंगी कि ये जो 2 महीने 3 महीने हैं, इस वक्त आप प्रेगनेंसी की कोई कोशिश ना करें, लेकिन इसके बाद कॉर्डिसेप्स को आप इम्प्रूवमेंट इन योर गमीट्स, चाहे वो एग्स हो, चाहे वो स्पर्म्स हो, चाहे वो डिजायर्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजेशन हो, उसमें भी कॉर्डिसेप्स हेल्प करता है। तो जो कॉम्बिनेशन ऋषि गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, मोरेंजी और कॉर्डिसेप्स का है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर सब फर्टिलिटी ऑल्सो ड्यू टू डिफिशियंसीज, प्रोवाइडेड वी नो वेयर द फॉल्ट इज। इसको आप डॉक्टर्स की दवाओं के साथ, इलाज के साथ अपने आप को और अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। चौथा सबूत हमारे पास नोनी जूस, मोरिंडा सिट्रोफोलिया या मोरेंजाइम। ये वो प्रोडक्ट है हमारा जिसने हेटी आइलैंड से निकलकर जब हमारे ऑर्गेनिकली कल्चर करने के बाद हमारे हाथों में आया, तो पता चला इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तकरीबन 115 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमें ये मजबूर करते हैं कि इसे हम रेगुलर यूज करें, क्योंकि ये स्किन से लेके और बोन तक हमें हेल्प करता है रिपेयर में, हमें हेल्प करता है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग में, और हमें हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। ब्रेन डैमेज से लेकर जॉइंट्स के डैमेज तक ये हमें हेल्प करता है। तो जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हम सेल्स की रिपेयर की बात करते हैं, हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करते हैं, तो वहाँ हमें मोरिंडा सिट्रोफोलिया कॉम्बिनेशन विद आरजीजीएल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि हमें इम्प्रूवमेंट इन इम्यूनिटी दे सकता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, तो ये एक अच्छा हमारे पास हथियार है जो कि हमें इम्प्रूव कर सकता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, जब भी हमारा खाना पीना हजम होगा। जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वो रेफरेंसेस हैं जो आप मोरिंडा सिट्रोफोलिया के जरिए से आप पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके 2 चमचे से लेके 10 चमचे तक पूरी बोतल भी पी जा सकती है, नो साइड इफेक्ट्स, और डेली बेसिस पे लेने से आपको नज़ला, जुकाम, चेस्ट के इन्फ्लेमेशन और जॉइंट के इन्फ्लेमेशन, ब्रेन के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये तमाम रेफरेंसेस लाइन्स मेन के बारे में सिर्फ 1 मिनट लूंगी। ये लाइन्स मेन वो मशरूम है जो वाइट लाइन के बालों के गुच्छे से तशबीह दिया गया, और इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है, ये हमारे ब्रेन को मजबूत रखता है। वो आसाबी बीमार लोग जो कोरोना में इफेक्टेड हैं और जिनके आसाब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पेन के जरिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनको लाइन्स में फायदा दे सकता है। और ये तमाम एविडेंसेस हैं जो हमें उसकी तरफ ले जा सकती हैं और हम उसको समझ सकते हैं। और रेगुलरली 4 से 6 टैबलेट्स लाइन्स में की लेने से हम वहाँ पे भी कोविड-19 से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास टी ट्री क्रीम का एक खजाना, ये वो टी ट्री क्रीम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टी ट्री क्रीम हमारे पास स्किन का एक ऐसा अल्लाह का तोहफा जिसने ऑयल की शक्ल में, मेलियोसा अल्टरनिफोलिया की शक्ल में हमें मिला,
और 4-5 हजार साल से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टी ऑयल जो है हमारे पास क्रीम की शक्ल में है, इसकी भी तकरीबन 500 से ज्यादा आर्टिकल्स मौजूद हैं जो मैं सिर्फ 180 पढ़ सकी। उसमें से इम्यूनो मॉड्यूलेशन का फैक्टर मुझे मिला, वायरस के खिलाफ लड़ने की सलाहियत मिली, फंगस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, सैनिटाइजर के तौर पर बेहतरीन। जितने भी अल्कोहल सैनिटाइजर्स हैं, अल्कोहल इटसेल्फ इज सेंसिटिव फॉर द स्किन। तो अगर आप टी ट्री क्रीम को एज ए सैनिटाइजर यूज करते हैं, एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, तो भी आप कोविड-19 से लड़ सकते हैं। बहुत सारे इसके फवायद हैं, इसको आप इनके आर्टिकल्स में देख सकते हैं। लेकिन कोविड-19 के लिए इसकी स्टीम इनहेलेशन, इसकी लोकल एप्लीकेशन आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो लेमोजी जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में अवेलेबल है, हो सकता है इंडिया में ना हो, पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन वही है जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल आप रेगुलरली लेमोजी टी का इस्तेमाल कीजिए एंड यू कैन फाइट बैक विद वायरसेस। नेक्स्ट एलोवेरा। अगेन एलोवेरा सीरीज आपके पास मौजूद है, जिस तरह चाहें आप एलोवेरा को इस्तेमाल करें। और ये खजाना जो है हमारे पास न सिर्फ कोविड के लिए है, हर जरासीम के लिए आपके पास हथियार है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरा पैगाम यही है कि जो कुछ हो गया सो हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखें, आगे चलें, प्रिवेंशन करें, और जो हो गए बीमार उनको उससे निकालें। हमारे इन तमाम प्रोडक्ट्स की मदद से भी निकाल सकते हैं और बाकी ख़ानदान को महफूज कर सकते हैं। मैं अल्लाह आपको हेल्प करे इन तमाम चीज़ों में और इस जहाद में हम सब मिल कर लड़ेंगे और दुनिया को इससे निकाल के रहेंगे। मेरी ये दुआ है कि मेरे तमाम हिंदुस्तानी बहन भाई, पाकिस्तानी बहन भाई और पूरी दुनिया की ग्लोबल फैमिली ऑफ DXN के प्लेटफॉर्म से इतना फ़ायदा उठाए और दुनिया को बता दे कि बॉडी इज़ द बेस्ट डॉक्टर एंड DXN प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट सप्लीमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपके कोई सवालात हों तो प्लीज़। Thank you very much, Dr. ji. Thank you very much. Good morning, doctor. Thank you very much, Dr. ji. I hope. Thank you. So the beauty of global family, global family, one world, one family, one world, one system. Everything is one. Wherever we may be, unique. This is the unique. One human being. One human being. What Dr. Lim thought to create one human being, each other, supporting each other, sharing the knowledge, each other for each other's welfare, the global welfare. We are really what we have been doing, we have done. We are very proud, Madam Dr. Asma Muni. People like you are biggest asset to DXN for promoting oneness, unity, prosperity. We can prosper only while we are united together for the human cause. Human life is precious, and anywhere there may be human life around the globe. Prevention and keeping the health of the world is very critical and very crucial at this hour. What the world crisis we are facing. Everybody in every country, in each country, people are today living in fear. What happens tomorrow? And they are feeling that this kind of crisis, this is worse than a war, and world has never faced such a
crisis True. on True. health, and at our lifetime, I think we should not see But again. I think, doctor, And- this is one way. This is one way of telling you that come back to nature. All these Come back to crises nature, correct. unite. And all these Yeah. crises, they come back to make you unite yourself. Unite together. Fight. Unite together. One earth. Yes, One because- earth. And One earth. it is a Yeah. lesson. It's a lesson. Nature is teaching us a lesson. Yeah. You have Exactly. abused us so much. We have Yeah. exploited the nature so badly Yeah. for all our selfish ends. And nature Yes, is of course. telling, now you come back to nature, as you said. You know, We when have when a baby do something wrong, mother, father will keep quiet for some time. Then the mother nature will come and squeeze your ear. This is what nature is doing to us. We have This to is come what- back and to see he's telling you to wash, telling you to stay back home, telling you to shut your mouth, cover yourself. This is the whole what Mother Nature wanted us. We never listened to that, you know. We never listened. Yes, this is That's why. exactly what a mother does for a child while the child Child. goes wrong. Mother Goes wrong, yeah. teach, you know, This is mother what- will ask the this child is to what keep Allah is quiet. teaching us now. Don't go there, don't go there, don't go out. No hugging, no kissing. Yes, yes, Keep it to yourself. yes. Hence, this is really nature is teaching us a lesson. This Yeah, is, inshallah, we'll again, get out of it. So We'll get out of get it. ourselves enlightened. Life is so short. We can't Yeah. imagine. And Yeah. in this short life, pretty human being selfish, hate each other, do all the wrong things. And There's no this time is so for beautiful. Exactly. I always say there is no time for love. How can you get some time for hatred? हमारे पास Yes. प्यार करने का टाइम नहीं है, तुम प्यार नफरत का वक्त कहाँ से ला? yes. Definitely. ये टाइम हमको नेचर ने सिखाया है बिल्कुल. how to live together globally Exactly. and help each other and love each other, promote each Corona other. is not to seeing the skin. कोई ना खाल देख रहा, ना जात Yes. देख रहा, ना पात देख रहा, ना religion देख रहा, तो सबको मार रहा है. इसका ये मतलब कि सबको डंडा मार तो रहा है. एक ही है. सबको मार रहा है. No डंडा color, किसी no को नहीं creed, देखता. no religion, no race, no Exactly. country. It is. Exactly. इसका सबको मतलब कि ह्यूमन सेल का कोई मजहब नहीं होता. ह्यूमन सेल इज अ Yes. सेल. उसको बका Cell. चाहिए, उसको प्यार चाहिए. Yes. उसको प्यार से रखो, बॉडी को Yes, प्यार yes. से रखो, फिर बॉडी भी Yes. प्यार से रहेगी, ज्यादा रहेगी, 100 साल 200 Yes. साल रहेगी. तो मैं Yes, तो ये yes, कहती हूँ yes. कि जब तक आप अपने बॉडी के सेल से प्यार नहीं करोगे, आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते. प्यार नहीं कर. अपनी बॉडी के प्यार नहीं. सेल्स को प्यार कर सकते. Yes. That is a Thank you beautiful very much, doctor. knowledge we got. Thank you very much, Dr. Asma Munir. And we pray for you. Let us Thank you. for your long life, healthy life. Thank you, doctor. We will do together. Wish you all the best. Inshallah. Oh, crown Thank you. ambassador. Thank you very much.